So we were studying fixed point iteration method in which you write given equation in fixed point form. So you have a root finding problem fx equals 0, and we split this problem into fixed point as x equals g of x. And there are many ways to write this g. Now we are going to talk about convergence of fixed point iteration. Convergence of fixed point method. So we will go step by step. Firstly, what uh, we have root finding problem fx equals 0. We write it as x equal g of x as fixed point problem. So तो अब g एक ऐसा फंक्शन है so in which you fit x, you got x. So x is fixed under function g. So now I'm going to put some conditions on g. First condition is that g is continuous. So it is a continuous function on some interval a to b, which has root alpha of fx equals to 0. Okay, so you have any interval ab in which you have root and g is continuous in that interval. So also, since we have x equals to g of x, so let if you take x in ab, then gx also belongs to ab. This means since we are expecting x equal g of x, so if x is around in that interval, then gx also belongs to that interval. And if gx is going away, then you may not get any convergence. Okay, so you are going near to root, so x equals so equal gx, so both belongs to same interval. These are assumption. Okay, so I have highlighted the assumption in different color. Rest of the proof we will write with black. Now define a new function. एक नया फंक्शन लिख रहा हूं मैं. Let us say phi x, that is gx minus x. आप लिख सकते हो x minus gx or gx minus x. Okay, so define a new function. If ga equal to a or gb equals to b, then a and b are fixed points. ठीक है कि अगर एंड पॉइंट पे इक्वल हो जाए, इफ जी ए इक्वल्स टू ए और जी बी इक्वल्स बी, देन ए जी ए इक्वल ए, जी बी इक्वल्स बी. So this means you got fixed points. So nothing to prove. So therefore we assume a not equals to g of a and b not equals to g of b.
अब कंडीशंस क्या है, जो जी एक्स है वो ए और बी के बीच में है. सो जी एक्स लाइज इन ए एंड बी, but GA not equals to A and GB not equals to B. This means GA will be greater than A and GB will be less than B. Why it is so? Because everything in A to B. So if GA is not equal to A, then it will be greater than A is the minimum. Okay, so and GB is not equal to B and B is the maxima. So GB will be less than B. Actually, what we are doing, we are treating this method as bisection. बाइसेक्शन इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या थी कि अ, अगर कोई फंक्शन साइन चेंज करे तो उसमें रूट होगा जरूर उसका. सो वी आर अप्लाइंग दैट प्रॉपर्टी ऑन फाई, कि फाई कंटिन्यूस है, इट विल चेंज इट्स साइन, सो यू कैन अप्लाई दैट प्रॉपर्टी. सो जी ए ग्रेटर देन, तो नाउ फिट इन फाई. So what was phi? Phi of A, that will be phi x is gx minus x. अब जी ए से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा. phi b क्या है? जी बी माइनस बी, so this will be negative. So now phi is continuous. It is a continuous function and phi a phi b less than 0. Then by IVT theorem, intermediate value theorem, phi has at least one root in AB. That is, there exists a point, रूट का आप अल्फा लिख लो, so that g of alpha, so phi का एक रूट होगा, so phi of alpha will be 0. When phi alpha equals to 0, so g alpha equals to alpha. So alpha is a fixed point. That theorem says that if you have a continuous function, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू हैं तो उनके बीच में जीरो जरूर होगा. तो फाई का रूट होगा, फाई क्या लिखा है आपने? जी एक्स माइनस एक्स. जब फाई जीरो होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स. तो आपको फिक्स पॉइंट मिल गया. सो दिस फर्स्ट पार्ट ये बताता है, दिस पार्ट टेल्स अस एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स पॉइंट. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा होगा मैथमेटिकली. So what we have written, we have defined a new function phi gx minus x, and on that new function you apply intermediate value property, which says that if you have a continuous function, you have a and b, so that function changes its sign, then at some point this function will be 0. Okay, any doubt in this point? No. Second point, says that fixed point is unique. That we
talked yesterday that uh, if derivative is less than 1, so you got unique fixed point. अब यूनिक होने का मीनिंग है कि ऊपर हमने लिखा ना कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, देयर एग्जिस्ट मींस ए पॉइंट की जगह अगर हम प्रिसाइसली कहें देयर एग्जिस्ट, you can say there is some point alpha or at least one point alpha. तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो फिक्स पॉइंट होगा वो यूनिक होगा, यानी कि अंडर व्हाट कंडीशन यू गॉट वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन. सो व्हाट वी, ऐसा मानना हो तो हम क्या करेंगे, हम दो सोल्यूशन मान लेंगे. ठीक है, मान लो कि अल्फा एंड बीटा आर टू सॉल्यूशंस या टू फिक्स पॉइंट्स, टू 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 फिक्स पॉइंट्स ऑफ x इक्वल टू जी एक्स. अब इनको इक्वल शो करना है ना, तो इक्वल शो करना है. अब फिक्स पॉइंट है तो क्या होगा, फिक्स पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा जी अल्फा के इक्वल होगा और बीटा जी बीटा के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों फिक्स पॉइंट हैं. अब हमने इनको इक्वल शो करना है, हम इनका डिफरेंस निकालते हैं पहले. अगर डिफरेंस जीरो आ गया तो ठीक है, इक्वल है ये. सो राइट द डिफरेंस मॉड मॉड अल्फा, तो अल्फा जी अल्फा है, बीटा जी बीटा है. ठीक है जी. अब एक मैथ्स में एक थ्योरम है जो फंक्शन वैल्यू डिफरेंस को एक्स वैल्यू डिफरेंस से रिलेट करता है. मे बी यू हैव स्टडीड मीन वैल्यू थ्योरम, एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एफ डैश सी बी माइनस ए. What this theorem says, you have a continuous function in a to b. Okay, so there is a point C. So you can write difference fb minus fa equal to f dash c b minus a. So this is called mean value theorem. So we apply mean value theorem on right hand side. तो क्या आएगा, apply mean value theorem, mean value theorem. We have लेफ्ट में अल्फा माइनस बीटा, राइट हैंड साइड में एक पॉइंट सी होगा, इसको आप ये लिख सकते हो जी डैश सी, और इसको लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा. ओके, तो प्रोडक्ट में मॉड आप अलग अलग कर सकते हो. एंड दिस सी बिलोंग्स टू, so this c lies between alpha and beta. ठीक है. So now we are putting one condition. So if derivative at c less than 1, then then alpha minus beta. ठीक है, तो राइट हैंड साइड में यानी कि जो डेरिवेटिव का मैक्सिमा है वो 1 से छोटा हो. तो अगर आप यहाँ पे 1 रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो ये साइड बड़ी हो जाएगी. या अदर वे में अगर आप लिखोगे, यू कैन राइट इन अनदर वे. पहले मैं लिख लेते हैं, लेट नोटेशन में लेट लैम्डा इज मैक्सिमा ऑफ डेरिवेटिव.
फॉर x बिलोंग्स टू ए बी। लैम्डा क्या है? डेरिवेटिव का मैक्सिमा उस इंटरवल के अंदर, एंड दिस मैक्सिमा इज लेस देन 1। अगर वे में यही है कि डेरिवेटिव का जो मैक्सिमा हो, जो भी मैक्सिमा होगा, अब लैम्डा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हम क्वेश्चन में उसको फाइंड करेंगे कितना है। 1 से छोटा होगा बट कितना है, 0.5 है, 0.1 है, 0.9 है, कितना होगा। सो दैट नंबर इज लेस देन 1, तो ऊपर फिट कर दो। सो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा, यहाँ लैम्डा लिखोगे, लैम्डा मैक्सिमा है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा लेफ्ट में ले आओ, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, वैसे लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इक्वलिटी भी रख लेते हैं बीच में। अब देखिए पहला नंबर है मॉड, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वांटिटी इज पॉजिटिव। अब सेकंड क्वांटिटी लैम्डा 1 से छोटा है, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम क्या हो सकता है? वो 0 हो सकता है। तो अब 0 कब होगा? अब लैम्डा या तो लैम्डा 1 के इक्वल हो तो 0 होगा, बट हमने क्या कहा? लैम्डा स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो ये फैक्टर तो 0 नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या है? ये 0 है। अब ये 0 है तो इसका मीनिंग क्या है? अल्फा इक्वल्स टू बीटा। So we have unique fixed point. We have unique fixed point. So what is the condition for unique fixed point? अब आप यहां से प्रूफ में देख सकते हो, अगर डेरिवेटिव 1 से छोटा हो, गो बैक फ्रॉम हियर, अगर ये 1 हो तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, देन यू कैन नॉट से अल्फा इक्वल्स टू बीटा, 1 भी अलाउड नहीं है। और अगर ये 1 से बड़ा हो, अगर लैम्डा डेरिवेटिव 1 से बड़ा होगा तो फिर तो ये ट्रू रहेगा हमेशा। सो दिस इज ट्रू, you cannot say alpha equals to beta. Okay, so when you have derivative, maximum of derivative is strictly less than 1, in that case you got unique solution. That is my second point. और ये हमने कल डिस्कस भी किया था, इसको यूज भी हम करेंगे कि you are writing many g and that g will work in which you have derivative less than 1. ओके, तो ये कंडीशन होगी फिक्स पॉइंट की। अब डेरिवेटिव लेस देन 1 का मीनिंग है, अब वो हिडन ही है कि जो जी डैश है दैट इज आल्सो कंटिन्यूस, डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। ओके सर हाँ जी, सेठ, हाँ जी, हाँ जी, सर हाँ जी बोलो। सही, अल्फा जो मोड अल्फा माइनस बीटा लेस देन डेरिवेटिव मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कैसे हुआ सर? ये ऊपर वाला ये यहाँ तक ठीक है, मीन वाले सूरत तो यहाँ तक ठीक यहाँ है। तक ठीक है सर, यहाँ तक हाँ ठीक। इधर डेरिवेटिव आ रहा है ना, कोई भी यस। पॉइंट सी या सी का हमें नहीं पता, इसको हमने गायब करना है। तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया, डेरिवेटिव का मैक्सिमा लैम्डा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमा डालोगे ना, हाँ तो सर वो तो राइट हैंड लेस साइड देन, बड़ी हो जाएगी ना सर लेफ्ट से। बट लैम्डा जो डेरिवेटिव आ रहा है वो 1 से छोटा है ना सर? वो 1 से छोटा है, वो हमने जी ऐसा लिखा है जिसमें डेरिवेटिव 1 से छोटा हो, 1 से छोटा है। बट देखो जी डैश सी है, जी डैश सी क्या है? डेरिवेटिव एट वन पॉइंट, एट सम पॉइंट सी। ये सिचुएशन है आपके पास, ये ए बी इंटरवल है, इसके अंदर ही रूट है अल्फा, इसके अंदर ही ये कोई सी है। तो हमने एजम्पशन क्या डाल दिया? इन दैट इंटरवल डेरिवेटिव इज लेस देन 1। तो
अदर वर्ड्स में मैंने लिखा है डेरिवेटिव का आप मैक्सिमा निकाल लो, वो मैक्सिमा 1 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए ऐसा जी है जिसका डेरिवेटिव का मैक्सिमा 1 से छोटा है। अब पॉइंट सी भी उसके अंदर है, इस पे जो मैक्सिमा होगा, सॉरी इस पे जो वैल्यू होगी डेरिवेटिव की वो मैक्सिमा से तो छोटी रहेगी ना। मैक्सिमा का मीनिंग क्या होता है? सबसे बड़ा। तो जब आप यहाँ पे मैक्सिमा रिप्लेस करोगे हियर, यहाँ पे मैक्सिमा डाल दोगे लैम्डा, तो ये साइड बड़ी नहीं हो जाएगी इधर वाली? ये तो सी पे डेरिवेटिव की वैल्यू है, हम क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव का मैक्सिमा निकाल के यहाँ पे डाल रहे हैं, जो भी मैक्सिमा होगा लैम्डा। नहीं तो साइड बड़ी हो जाएगी राइट हैंड साइड। सी तो सिंबल्स है ना, सिंबल है ना, डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इन इंटरवल ए बी, उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं मैक्सिमा से, इधर मैं डाल रहा हूं मैक्सिमा, डेरिवेटिव का मैक्सिमा। पहले ये इक्वल है, व्हेन यू रिप्लेस मैक्सिमा दिस साइड विल बी ग्रेटर देन। ओके सो अब थर्ड पॉइंट है, जैसे हम वी डू ऑन ऑल न्यूमेरिकल मेथड्स, नाउ वी विल फाइंड एरर। So, what is error? Error किसको बोलोगे? ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एरर। ओके, तो अब फिक्स पॉइंट इटरेशन लिख लो। फिक्स पॉइंट इटरेशंस आर सिंबॉलिक लिखना है xn+1 इक्वल टू g ऑफ xn, n is 0 1 2 3 etc. So start with initial guess x0, you got x1, बार बार रिप्लेस करते जाओ, दीज आर इटरेशंस ऑफ फिक्स पॉइंट। अब हमारी कंडीशंस क्या थी फर्स्ट पार्ट से? सो व्हाट आर कंडीशंस? सो एवरीथिंग रिमेन इन ए बी, तो इसका मीनिंग है सो एक्स एन भी ए बी के अंदर है, सो एवरीथिंग, अब जो आंसर आ रहे हैं xn+1 वो जी एक्स एन के इक्वल है, और जी एक्स एन भी ए बी के अंदर है, सो एवरीथिंग रिमेन इनसाइड इंटरवल ए बी। अब हमने एरर कंप्यूट करना है। एरर हम कैसे निकालते हैं? ट्रू माइनस अप्रोक्सीमेट, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट xn या xn+1 लिख लो। अब अल्फा फिक्स पॉइंट है तो अल्फा जी अल्फा होगा, ठीक है, और xn+1 ऊपर क्या है? जी xn है। अब सेम मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो, अभी लगाई थी ना हमने मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, जी अल्फा जी ए माइनस जी बी, यहाँ क्या लिख सकते हो? जी डैश सी अल्फा माइनस एक्स एन। अब एक्स एन है तो सी को भी वेरी कर दो, सी एन, फॉर सम सी एन lies between alpha and xn। अब सेकंड पार्ट में हमने डेरिवेटिव का मैक्सिमा, उसको लैम्डा का है, तो इसकी जगह आप डाल दो लैम्डा, तो ये साइड बड़ी हो जाएगी। डेरिवेटिव का मैक्सिमा अल्फा माइनस एक्स एन। ओके, तो रिलेशन बन गया आपके पास ये। अगले स्टेप पे एरर लेस देन और इक्वल टू लैम्डा टाइम पिछले स्टेप पे एरर। अब इसको देख के अब बार बार लिखोगे, अगर बार बार अप्लाई करोगे तो अब रूल क्या बना कि अल्फा xn+1, एक लैम्डा बार आ जाएगा और एक लेवल कम हो जाएगा ना, n+1 की जगह n आ जाएगा और एक लैम्डा बार आ जाएगा। तो इसको अगर बार बार अप्लाई करोगे
इस पे फिर लगा दो दोबारा से अल्फा माइनस एक्सन से, तो एक लैम्डा बाहर आएगा, एक एन और कम हो जाएगा, दोबारा फिर लगा दो, एक लैम्डा और आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बार बार लगाते जाओ, लास्ट में आप x0 पे पहुंच जाओगे। n माइनस एन आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3, n माइनस एन आएगा यहाँ पे 0, तो ये एक ज़्यादा रहेगा ना। 0 कब बनेगा? n माइनस एन पे, तो 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ पे n माइनस एन एन है तो यहाँ पे n+1। ठीक है, नॉन पे चले गए, यानी कि इनिशियल गैस पे हम चले गए अल्फा माइनस एक्स। अब लिमिटिंग केस में एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब लैम्डा एक नंबर है जो 1 से छोटा है, तो उसकी लिमिट क्या आएगी? कोई नंबर 1 से छोटा हो, उसकी पावर इन्फिनिटी को जाए, क्या वैल्यू आएगी? 0 0। 0 सो दिस विल गोज टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जब आप बार बार लगाओगे मेथड को, तो ये चीज तो छोटी बन जाना, ये तो 0 बन जाना है। अब ये इससे छोटा ही है, तो इसका ये पॉजिटिव भी है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? लिमिटिंग केस में xn+1 और अल्फा दोनों सेम है। और एक्सन क्या है जो आप इटरेट कर रहे हो? x0 x1 x2 x3, यानी कि बार बार करोगे तो जो ये एक्सन है वो क्या बन जाएंगे? अल्फा ही बन जाएंगे, रूट बन जाएंगे। इसी को हम कन्वर्जेंस बोलते हैं कि एक्सन कन्वर्जेस टू अल्फा इन लिमिटिंग केस। ठीक है, तो यहां से, सो दिस इंप्लाइज xn converges to अल्फा। और इसी में एक बीच में एक इंटरमीडिएट इक्वेशन ये बनी है। हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमने डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं? अगले स्टेप पे एरर, पिछले स्टेप पे एरर, दोनों को रिलेट करते हो आप। वो यहाँ हो ही रही है। ठीक है, और ये 2 था, तो पहले 2 को लिख लेते हैं दोबारा से। फ्रॉम 2 अल्फा माइनस xn+1 है, तो इधर इधर आ रहा है आपका लैम्डा n+1। तो अगर xn लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा। 2 को मैंने दोबारा लिख दिया। फ्रॉम फर्स्ट में क्या आ रहा है? अल्फा माइनस xn+1 लेस देन और इक्वल टू लैम्डा अल्फा माइनस xn। तो लिमिटिंग केस में सर फ्रॉम 2 में हाँ जी, एक लैम्डा लेवल की पावर n+1 नहीं थी? इधर इधर मैंने एक लेवल कम कर दिया, अल्फा माइनस xn, इधर भी एक कम कर दिया, इधर भी एक कम हो जाएगा अपने। ठीक है सर। वो जनरली एरर को हम क्या लिखते हैं? अल्फा माइनस एक्सन लिखते हैं। आप एक्सन प्लस वो सिंबॉलिक है जो भी लिखोगे आप, तो ये एरर बन गया ना आपका। इसको इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, चलो। अल्फा माइनस एक्सन क्या है? एरर। ई एन लिख लो इसको। तो ये क्या बन जाएगा? en+1, और ये इधर इधर क्या है? लैम्डा ई एन। सो en+1 लेस देन और इक्वल टू, अगर आप लैम्डा की वैल्यू देखो तो लैम्डा हमने क्या लिखा था यहाँ पे? g'(cn), यही था ना लैम्डा। Take limit on both sides. So in limiting case, take limit
n tends to infinity. As xn converges to alpha, converges को हम ये भी लिख सकते हैं. अब हमने ये प्रूव किया ना पिछले पार्ट में, ये आपका कोई xn होगा, ठीक है, ये आपका की रूट है, तो ये इसको कन्वर्ज कर रहा है, मतलब बार बार लगाओगे तो ये दोनों सेम बन जाएंगे. ये लिखा ना हमने ऊपर, xn converges to alpha. So in limiting case they both are same, alpha और xn. अब जो cn है बाय डेफिनेशन, cn इनके बीच में है, तो cn किसको कन्वर्ज करेगा फिर? xn अल्फा बन जाएगा लिमिटिंग केस में, cn हमेशा बीच में रहना है उनके. वो भी सेम ही हो जाएगा हाँ, सर. so cn also converges to alpha. Therefore लिमिटिंग केस में जो एरर होगा en plus 1, इधर आप लिख सकते हो g डैश अल्फा, cn की जगह अल्फा लिख सकते हो, और en लिमिटिंग केस में. अब g डैश आपका लेस देन 1 हमने कहा ही है पहले, है ना, डेरिवेटिव लेस देन 1 है. अब यहाँ पे एक चीज और प्रूफ हो रही है, अगले स्टेप पे एरर पिछले स्टेप से एरर से कम है और पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? 1 होगा. शाबाश. सो बाय डेफिनेशन convergence is linear, convergence is of order 1. तो थर्ड पार्ट में हमने कन्वर्जेंस की बात की है और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड किया है. ओके, say this is number 3. Okay, so let's go back, quickly recall what we have done today. In first part we talked about existence of fixed point, तो वो हमने कैसे बताया? बाइसेक्शन वाले वे से. We have written x equal to gx, we have defined a new function gx minus x, तो इस पे हमने साइन चेंज, कंटिन्यूटी और साइन चेंज वाला प्रॉपर्टी लगाया, तो आपको एक रूट मिलेगा अल्फा ए और बी के अंदर. सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया कि ये फिक्स पॉइंट मिलेगा आपको, वो यूनिक होगा, कब होगा? तो वहां पे एक कंडीशन है, डेरिवेटिव 1 से छोटा हो तो आपको यूनिक मिलेगा. सो ऑन द कॉन्ट्रेरी वी अज्यूम 2 फिक्स पॉइंट, 2 मान लो अल्फा और बीटा, तो अल्फा भी जी अल्फा होगा, बीटा भी जी बीटा, दोनों का डिफरेंस निकालो. राइट हैंड साइड में अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम, तो एक पॉइंट पे डेरिवेटिव आ जाएगा सी. सी इज सम अननोन पॉइंट बिटवीन ए अल्फा एंड बीटा. अब अननोन पॉइंट को गायब भी करना है हमने, तो मैंने क्या लिखा, डेरिवेटिव का मैक्सिमा लैम्डा लिख लिया. और बस ये वैसे आगे यूज होगा, आगे यहाँ पे यूज हो रहा है, अभी यहाँ नहीं दिख रहा कि ये 1 से छोटा हम क्यों लें. तो मैंने डेरिवेटिव का मैक्सिमा रिप्लेस किया यहाँ पे, तो ये साइड बड़ा हो गया. तो अगर आपने अल्फा इक्वल टू बीटा शो करना है तो डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली 1 से छोटा होना चाहिए. अगर डेरिवेटिव 1 होगा तो ये फैक्टर 0 कर देगा, तो देन यू कैन नॉट से अल्फा इक्वल्स टू बीटा. और अगर डेरिवेटिव 1 से बड़ा हो गया, मतलब 2 हो गया, तो 1 माइनस 2 ये नेगेटिव है, ट्रू है, ठीक है, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू बन जाएगी. then also you cannot say alpha equal to beta. So if lambda is strictly less than 1, then both term will be positive. अब पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता. जीरो कब होगा? जब वन ऑफ देम इज जीरो. ठीक है, तो अब ये 1 माइनस लैम्डा तो जीरो नहीं है, सो दिस इज नॉट जीरो, बट इसका मीनिंग ये जीरो है. फिर अगर ये जीरो है, रियल नंबर है, तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे.
So to get unique fixed point, this is the condition that derivative must be strictly less than 1. ठीक है, और थर्ड पार्ट में हमने एरर निकाला है. एरर आप कैसे निकालते हो? ट्रू को इटरेशन से कंपेयर करते हो. तो इटरेशन हमारी क्या है? xn+1, इनका डिफरेंस निकाला. अल्फा फिक्स पॉइंट है, इसको आप जी अल्फा लिख सकते हो. xn+1 इटरेशन से जी एक्सएन है. इस पे लगा दो मीन वैल्यू थ्योरम, तो जी डैश सी आ जाएगा. सी को सी एन लिख दो क्योंकि हमने एक्सएन लिखा है, यानी कि अलग अलग आएगा. x1 के लिए अलग c1 आएगा, x2 के लिए अलग c2 एंड सो ऑन. बट ऑल डेरिवेटिव इज लेस देन 1, और जो डेरिवेटिव का मैक्सिमा वो लैम्डा मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो ये साइड बड़ा हो जाएगा. फिर आगे मैंने बार बार लगाया, तो आप इस पे इनिशियल गैस पे जा सकते हो. तो यहां से मैंने कहा कि लैम्डा लिमिटिंग केस में ये टर्म 0 को अप्रोच करेगा, तो इसका मीनिंग है लिमिटिंग केस में अल्फा और एक्सन बोथ आर सेम. और इसी से फर्स्ट से आप ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी कह सकते हो. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दिस इज द एरर एट नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द एरर एट previous step. So from here you can say order of convergence is 1. Okay, बस एक छोटा सा पॉइंट और है, वैसे यहाँ फिनिश हो गया. एक एरर बाउंड को लिखने का दूसरा वे है. फ्रॉम 3, वैसे 3 से हमें एरर मिल गया. एरर कितना है? अल्फा माइनस एक्सन अल्फा माइनस एक्सएन लेस देन और इक्वल टू लैम्डा एन अल्फा माइनस एक्स जीरो, की एरर का मैक्सिमा इतना होगा, लैम्डा एन एक्स अल्फा माइनस एक्स जीरो. बट इसको डायरेक्टली यूज करने में एक दिक्कत है. वी हैव वन प्रॉब्लम. अब अल्फा नहीं पता, ठीक है, अल्फा तो रूट है, अल्फा आप निकाल रहे हो. सो इनडायरेक्टली वी कैन नॉट यूज दिस अनलेस वी नो अल्फा. तो हम इसी को दूसरे वे में लिखते हैं, एरर को दूसरे वे में, so that you won't get alpha on right hand side. ठीक है, तो अब मैं दूसरे वे में कैसे लिख रहा हूं? वी राइट, मैं लिख रहा हूं राइट हैंड साइड में अल्फा माइनस एक्स जीरो आ रहा है, इसको दूसरे वे में लिख रहा हूं. इसको मैं लिख रहा हूं अल्फा माइनस एक्स वन प्लस किया माइनस किया, कर सकते हैं. नाउ यूज ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है? ए प्लस बी मॉड लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी. So first का मॉड, then second का मॉड. ओके, अब फर्स्ट को यूज करो दोबारा से. फर्स्ट अल्फा माइनस एक्स एन प्लस वन लेस देन लैम्डा. एक एन कम होगा और लैम्डा आ जाएगा बाहर, तो इस पे लगा दो. फर्स्ट लैम्डा एक कम हो जाएगा तो x1 x0 बन जाएगा, एक लैम्डा बाहर आ जाएगा. सेकंड एज इट इज, इसको लेफ्ट में ले जाओ. अल्फा माइनस एक्स जीरो, फर्स्ट टर्म को लेफ्ट में ले आओ. ठीक है, अल्फा माइनस एक्स जीरो कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा. अब आप बना लो फर्स्ट वाला. सो यू नीड अल्फा माइनस एक्स जीरो, ये हमें चाहिए. इसको डिवाइड कर दो, और क्या था यहाँ पे? लैम्डा एन था. लैम्डा एन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया जो लिखा मैंने, लैम्डा एन. अब इससे छोटा, अब ये रिलेशन था, अल्फा माइनस एक्सन इससे छोटा है और ये सबसे बड़ा है.
So from here you can write, इसको रख लो. So alpha minus xn less than lambda n 1 minus lambda x1 minus x0. This is error bound. So now you don't have any. अब lambda है, right hand side में क्या है? Lambda. What is lambda? Maximum of derivative. N, number of iterate, how many times you are repeating. And x0, initial guess है. And what is x1? X1 is also g of x0. So now you don't have alpha on the right hand side. So this is the practical bound that you can use. So this is the maximum error in fixed point iteration. Okay. Any query? No, sir. So that's it. सर हाँ जी. सर सेकंड पार्ट में फिक्स पॉइंट के यूनिक वाले में प्रॉब्लम है. सेकंड पार्ट में Yes, sir. यूनिक जब शो करते हैं मैथ्स में तो आप दो मान लो, है ना, दो डिफरेंट मान लो. तो मैंने दो फिक्स पॉइंट ले लिए अल्फा बीटा. सर इसमें ये नहीं, बस ये प्रॉब्लम है, मतलब मॉड अल्फा माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू लैम्डा 1 अल्फा माइनस बीटा. वो यहाँ पे देखिए हमने प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं. हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं अल्फा इक्वल्स टू बीटा. तो वो कब आएगा? जब ये टर्म जीरो बन जाएगी. अब जीरो कब बनेगी? जब अल्फा और बीटा इक्वल होंगे तभी बनेगा ये. सर ये उसके मतलब साथ में ये आ गया 1 माइनस लैम्डा. ये लैम्डा का जैसे मैक्सिमाइजेशन वाला जो बता रहे थे, देखिए उसके पहले यहाँ पे मैंने 1 माइनस लैम्डा क्या है? डेरिवेटिव का मैक्सिमा है. देखो ये टर्म अगर लैम्डा 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस लैम्डा क्या होगा? सो पॉजिटिव होगा, ये पता है सर. हाँ ये पॉजिटिव होगा. सर हाँ सर, उसके पहले स्टेप में जो मॉड अल्फा माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू लैम्डा अल्फा माइनस बीटा वाला, ये इससे लिखा मैंने. ये ऊपर वाला देखो, ये मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी है यहाँ तक. सर ठीक है. तो डेरिवेटिव का आप चाहे लैम्डा, डेरिवेटिव का जो इधर डेरिवेटिव आ रहा है एक पॉइंट सी पे, तो मैंने डेरिवेटिव का मैक्सिमा पूरे इंटरवल में वो लिख लिया लैम्डा. तो यहाँ पे इसकी जगह मैं डेरिवेटिव का मैक्सिमा रिप्लेस कर रहा हूँ इसकी जगह. तो ये साइड बड़ी नहीं हो जाएगी फिर? ये जी डैश सी मॉड की जगह मैंने लिख दिया लैम्डा. आप क्या वन लिखो, वो सिंबॉलिक है. अब ना लिखो लैम्डा. ये डेरिवेटिव को मैक्सिमम 1 है, 1 से रिप्लेस कर दो. ठीक है. तो ये तो ट्रू हो नहीं सकता ना. अल्फा माइनस बीटा लेस देन अल्फा माइनस बीटा. ये कब होगा? व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा. तभी तो होगा. सर अगर लैम्डा वाला रहेगा तो वो तभी होगा ना जब लैम्डा ग्रेटर देन 1 होगा. नहीं, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 1 क्यों है? देखो ये जी एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव रूट के अराउंड जो भी डेरिवेटिव, आप एक बार 1 भूल जाओ, आप इसको 1 को एक बार भूल जाओ. अब कह लो कि जो डेरिवेटिव का जो भी मैक्सिमा होगा उसको मैंने लैम्डा लिख लिया. ठीक है. तो यहाँ पे लैम्डा डाल दो तो ये साइड बड़ी हो जाएगी. मैक्सिमा लिख रहे हो आप, वो कंडीशन यहाँ पे डाल दीजिए. आप उसको यहाँ से वहां से हटाइए, आप यहाँ डाल दीजिए. अब मेरे पास ये आ गया यहाँ पे. ठीक है. अब मेरे सो आई कैन राइट मॉड अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस लैम्डा लेस देन 0. यहाँ पे डाल दो कंडीशन. सो इफ लैम्डा लेस देन 1 देन you have alpha equals to beta. अब वो कैसे होगा? देखो अगर लैम्डा लेस देन 1 ना हुआ, अगर लैम्डा 1 हो गया, इसका मीनिंग क्या होगा? ये टर्म 0 हो गई. यस. तो अल्फा माइनस बीटा कुछ भी हो,
तो ये ट्रू ही रहेगा, लेस देन 0 है, ट्रू रहेगा वट एवर अल्फा बीटा यू टेक। तो फिर आपको अल्फा इक्वल टू बीटा नहीं मिलेगा। अगर लैम्डा 1 से बड़ा हुआ तो 1 माइनस लैम्डा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव तो है ही इधर राइट हैंड साइड में, तो ट्रू फिर भी ट्रू है। देन वट एवर अल्फा बीटा यू टेक दिस विल बी रिमेन ट्रू। बट हम क्या चाहते हैं, अगर आपने अल्फा इक्वल टू बीटा लेके आना है तो इसका मीनिंग है ये वाली टर्म तो 0 ना आए और इनइक्वालिटी ट्रू भी रहे। ट्रू रहेगी तो इसका मीनिंग है, मतलब ट्रू रहने का मीनिंग है ये 0 भी आ जाए। अब 0 कब आएगा, अब अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नहीं होगा, आपने कॉन्ट्राडिक्ट करना है यहाँ पे। तो ये भी पॉजिटिव हो, ये तो पॉजिटिव मॉड है ही। पॉजिटिव कब होगा, जब लैम्डा लेस देन 1 होगा। इसका मीनिंग है नेगेटिविटी तो हट गई यहाँ से, सिर्फ एक चीज बचती है, इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 आएगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा बन जाएगा। सो दैट कंडीशन यू नीड टू इम्पोज। इसको चाहे एंड में लिख लो, इफ लैम्डा लेस देन 1 देन अल्फा इक्वल टू बीटा, सो फिक्स पॉइंट इज यूनिक। सो फिक्स पॉइंट इज यूनिक। तो सर अगर अब लैम्डा लेस देन 1 है तो वो फिर लेस देन वाली कंडीशन नहीं लगेगी ना फिर? हाँ तो लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन हट गया यहाँ से, इक्वल तो बच जाएगा ना, इक्वल टू 0 तो आ ही जाएगा ना। नहीं सर, मैं वो ऊपर वाली, वो यहाँ पे कि लैम्डा मतलब जो मोड अल्फा माइनस बीटा लेस देन लैम्डा मोड अल्फा माइनस बीटा है ना। वहां तक सिंबॉलिक लिख रहे हैं, जब हमने कंडीशन डाली फिर हमने कह दिया कि ये अल्फा इक्वल टू बीटा होगा तो ये ट्रू रहेगा, फिर लेस देन यानी कि नहीं आएगा, कहने का मीनिंग। हाँ आपकी बात ठीक है, लेस देन नहीं आएगा, बट सिंबॉलिक हम लिखेंगे ना, पहले तो लिखेंगे, बाद में जब कंडीशन डाल दोगे फिर आप कहोगे कि नहीं वो नेगेटिव नहीं हो सकता वो। ठीक है, या तो शुरू में अजम्पशन डाल देते, वो मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, मैंने जब जरूरत पड़ी तब डाल दिया उसको। सो इफ यू वांट अल्फा इक्वल टू बीटा देन in that case you must have lambda which is the maxima of derivative of g, that maxima is strictly less than 1. चलो एक बार पढ़ना, tomorrow we will revisit it again. Okay, okay. We have class Yes sir. 10:30 तक की नहीं? Yes sir. 40 तक है, 30 तक है। ओके, इसको एक बार थोड़ा पढ़ना, थोड़ा अनयूजुअल सा नहीं थोड़ा लग रहा होगा आपके, बट इट्स सिंपल। और थर्ड पार्ट में हम एरर निकाल रहे हैं, वो सब में न्यूमेरिकल मेथड में हम एरर फाइंड करते हैं, ट्रू एंड अप्रोक्सीमेट का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एरर। सो अल्फा और एक्सन का डिफरेंस। सो आई विल स्टॉप नाउ, जस्ट रीड इट एंड ब्रिंग योर डाउट्स इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट क्लास। ओके।